تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا، لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے محاورہ ہے۔ خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 43۔ روزہ رکھنا۔ مسیحیوں کے لیے روزہ ایک مذہبی روایت بن گیا ہے جو کچھ عرصے سے چلے آ رہا ہے۔ ایک عام غلط فہمی ہے کہ جو شخص اپنی روحانی زندگی میں سبقت لے جاتا ہے وہ اکثر اور کثیر روزے رکھتا ہے، لہٰذا ایک عقیدہ ہے کہ کم از کم ایک بار 40 دن کا روزہ رکھنا ایک اہم روحانی ریکارڈ قائم کرتا ہے، اور اگر کوئی 40 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو 21 یا 7 دن کا روزہ کچھ روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بائبل روزے کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں کب اور کیوں روزہ رکھنے کو کہا، کیونکہ روزہ صرف مسیحیت میں پایا جانے والا ایمان کا عمل نہیں ہے۔ تقریباً تمام مذاہب میں روزے کو ایک مذہبی عمل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کو وہ دیوتا سے برکات پانے یا حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا بائبل کے ذریعے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بائبل کے مطابق روزہ کیا ہے، اور اس روحانی روزے کا اپنی زندگیوں میں اطلاق اور تجربہ کریں۔ روزہ خواہشات کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ بائبل میں بہت سے لوگ اس وقت روزہ رکھتے تھے جب ان کی خواہش ہوتی تھی۔ داؤد نے روزہ رکھا اور دعا کی، اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا۔ مرد خدا داؤد نے روزہ رکھا اور بیت سبا سے پیدا ہوئے اپنے بچے کو بچانے کے لیے دل جمعی سے دعا کی، لیکن خدا نے داؤد کے روزے اور دعا کے 7ویں دن بچے کو مار ڈالا۔ اگرچہ مرد خدا داؤد نے 7 دن تک روزہ رکھا اور دعا کی، خدا نے بچے کو مار ڈالا۔ داؤد کے جرم کی وجہ سے خدا نے بچے کو مارا، لہٰذا خدا کے ساتھ داؤد کے تعلقات کی بحالی کی بغیر چاہے وہ کیسے یا کس طرح سے دعا کرے، خدا جواب نہیں دے سکتا۔ خدا نے فرمایا ہے کہ اگر اس کے لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ ان کی کسی قسم کی دعا، روزے یا فریاد کو نہیں سنے گا، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں گے تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا، اور جب سوختنی قربانی اور ہدیہ گزرانے تو قبول نہ کروں گا، بلکہ میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کو ہلاک کروں گا۔ لہٰذا ہماری دعاؤں اور روزوں کو بنیادی طور پر خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنے پر مرکوز ہونا چاہیے۔ بالکل یہی بات بائبل بیان کرتی ہے۔ روزہ خدا سے تعلق کی بحالی کے لیے ہے۔ بائبل میں خدا واضح طور پر اپنے لوگوں کو روزہ رکھنے کو کہتا ہے۔ تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرتی ہے۔ نظر کی قربانی اور تپاون خداوند کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ خداوند کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں، کھیت اجڑ گئے، زمین ماتم کرتی ہے، کیونکہ غلہ خراب ہو گیا، نئی میں ختم ہو گئی اور روغن ضائع ہو گیا۔ اے کسانوں خجالت اٹھاؤ، اے پاکستان کے باغبانوں نوحہ کرو، کیونکہ گیہوں اور جو اور میدان کے تمام درخت مرجھا گئے اور بنی آدم سے خوشی جاتی رہی۔ اے کاہنوں کمریں کس کر ماتم کرو، اے مذبح پر خدمت کرنے والوں واویلا کرو، اے میرے خدا کے خادموں آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ اوزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے۔ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو۔ سیون میں نرسنگا پھونکو، روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ یہ ٹھیک ہے، خدا نے ہمیں اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان تعلق کو جو گناہ کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا بحال کرنے کے لیے روزے کا اعلان کرنے کو کہا۔ خدا نے ان گنہگاروں کو جنہوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور بادشاہ بن گئے تھے حکم دیا کہ اپنی خواہشات کو
मार डालें ताकि खुदा की तरफ वापस लौटा जा सके। रोजा यही है। लिहाजा उन लोगों ने जो खुदा की तरफ लौटे, उन लोगों ने जो खुदा के पास बहाली के लिए आए, रोजा रखा। और सैमुएल ने इसराइल के सारे घराने से कहा कि तुम अपने सारे दिल से खुदा की तरफ रजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और इस्तरात को अपने बीच से दूर करो और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फक्त उसी की इबादत करो और वो फिलिस्तीनियों के हाथ से तुमको रहाई देगा। तब बनी इसराइल ने बालीम और इस्तरात को दूर किया और फक्त खुदावंद की इबादत करने लगे। फिर सैमुएल ने कहा कि सब इसराइल को मिस्पा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। सो वो सब मिस्पा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे ढेला और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। और सैमुएल मिस्पा में बनी इसराइल की अदालत करता था। ये ठीक है, मुकम्मल रोजा खुदा के साथ कामिल ताल्लुक बहाल करने के लिए रखा जाता है ताकि मुकद्दस खुदा के करीब हुआ जा सके। ताहम बनी इसराइल ने अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करने और अपनी दुआओं का जवाब पाने के लिए रोजा रखा। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने खुदा की बादशाही के लिए रोजा रखा, लेकिन बातनी तौर पर उन्होंने अपने लिए रोजा रखा। गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानेंद अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानेंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि आलमे बाला पर तुम्हारी सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा उनका मकबूल हो? और रब्बुल अफ़वाज के घर के काहिनों और नबियों से पूछें कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं जैसा कि मैंने साल से किया है? तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे। यही वजह है कि जब खुदा के लोग तौबा करते थे तो रोजा रखते थे। ये खुदा से कुछ ज्यादा पाने या हासिल करने के लिए नहीं बल्कि उसे तलाश करने से मुतल्लिक था। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुज़ूर दुआ की। मैंने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हूँ। मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदे की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदे को कामयाब कर और उस शख्स के सामने उस पर फजल कर। यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस गुजरेंगे। और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठ कर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ऐ खुदावंद अजीम और मुहिब खुदा, तो अपने फरमा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम और आइन को तर्क किया है। रोजा खुदा की तलाश है। रोजा और दुआ और रोजा खुदा से फायदा हासिल करने के लिए, मकसद के लिए नहीं है। खुदा की ताकत को मजबूती और तेजी से हासिल करना कोई मजहबी अमल नहीं है। रोजा वो है जब आप इस दुनिया में अपनी ताकत
और गरूर को छोड़े और खुदा की बादशाही और उसकी मर्जी को पूरी तरह तलाश करें। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशाफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशाफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बो तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में हैं जो ऐन जदी है। और यहोशाफत डर कर दिल से खुदा उनका तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में खुदावन से मदद मांगने को आए। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। लिहाजा रोजा एक ऐसी चीज है जो हम खुदा के सामने तब करते हैं जब हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक का जायजा लेते हैं। रोजा दूसरों को दिखाने की चीज नहीं है और ना ही इससे मुतल्लिक लोगों के लिए फख्र करना ईमानी अमल है। यीशु ने वाज़े तौर पर इसकी निशानदेही की। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा की रजा के लिए रोजा रखना। खुदा अपने लोगों से जो चीज चाहता है वो रोजा नहीं है, बल्कि खुदा के लोगों के तौर पर जिंदगी गुजारना है। लिहाजा खुदा के लोगों को बखूबी जानना चाहिए कि खुदा क्या चाहता है और खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। लेकिन ये हम गुनहगारों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं, इसलिए हम गुनाह के रास्ते पर चलते जाते हैं, चाहे हम साकिन खड़े हों। लिहाजा हम खुदा की मर्जी की पैरवी करने, खुदा को खुश करने वाली जिंदगी गुजारने और अपने आप को जो बादशाह बनना चाहते हैं आजिज करने के लिए और खुदा की फरमाबरदारी के लिए रोजा रखते हैं। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता और उनसे नफरत रखता हूँ। मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना हूँगा, और अगरचे तुम मेरे हजूर सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानियां गुजरानोगे तो भी मैं उनको कबूल ना करूँगा, और तुम्हारे फरबाद जानवरों की शुक्राना की कुर्बानियों को खातिर में ना लाऊंगा। तो अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज ना सुनूंगा, लेकिन अदालत को पानी की मानिंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानिंद जारी रख। मैं क्या लेकर खुदावन के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं? क्या सोख्तनी कुर्बानियां और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? क्या खुदावंद 1000 मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलौठे को अपने गुनाह के एवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। ये ठीक है, हम रोजा रखते हैं जब हम इस दुनिया में खुदा के लोगों के तौर पर रहते हैं, जब हम बादशाहों के तौर पर रहने की कोशिश करने के लिए अपनी पीठ खुदा की तरफ मोड़ देते हैं। ये हमारे गुनाहों को मिटाने और रूहुल कुद्स खुदा की रूह की मामूरी से मामूर होने के लिए है। ये ऐसी जिंदगी गुजारना नहीं है जिसमें इंसाफ और सदाकत खत्म हो जाए, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारना है जहाँ इंसाफ और सदाकत का एहसास हो। ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए हमें अपने आप को मारने के लिए रोजा रखना और खुदा की रूह से मामूर होना होगा। ये ठीक है खुदा के लोगों के तौर पर जब हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक की बहाली के लिए खुदा और उसकी मर्जी को तलाश करते हैं तो हम रोजा रखते हैं।